Students, good morning and a very happy Diwali to all of you. सारे बच्चे सारे festive mood में हैं. I know everybody is in festive mood. Everybody wants to celebrate Diwali and you're in mood of celebrating it. So it's the festival. हम जब class लिखते हैं paragraph तो पहला line होता है Diwali is the festival of light, है ना? ये पहला line होता है. What is Diwali? It's a festival of light. So students, before starting the chapter, before starting today's class, सारे बच्चों को very happy Diwali, बहुत बहुत Diwali prosperous हो, आपके लिए बहुत अच्छा बीते, safe हो. But request to all the students, everybody. Yesterday also I requested, today I'm also requesting everybody, those who are in the class, that this Diwali no crackers at all. We have no crackers. You got the message from the school as well, because ये हम pandemic situation में हैं. We are in the pandemic situation in which we are having many corona patients, many patients which have recovered from corona. कुछ लोग recover भी कर चुके हैं corona से, but still they are struggling. They are struggling. So in case because this corona बीमारी है, this disease is all about the respiratory tract. ये respiratory tract को आपको infect किया है. मैंने आपको उस दिन भी बताया, फिर से बता रही हूँ. General information, it's nothing to be but you should be concerned about it. कि ये respiratory tract को आपको infected करता है, यानी आपके respirations. So those who have been infected with corona, or those who have recovered also, they have got infections in their respiratory tract. It's our duty, our concern to everybody, ताकि कोई बीमार ना पड़े. So say no crackers this time. Diwali should be celebrated with the light. सिर्फ blast करके light नहीं होता, by burning candles, diyas, making the lights beautifully decorate your house like that. Sweets, कुछ अच्छे खाना खाएंगे, घर डेकोरेट करें, माँ से कहें कि कुछ अच्छा खाना बनाए and you have enjoy that, है ना? So make it a practice. अभी इस दिवाली no crackers at all. Okay? Okay. So let me get back to the class. आज हम लोग food का last portion करेंगे. हम लोग ऐसे मैंने जो food को बड़ा अच्छा सजाया है, खुशी वाला कैप पहना दिया. सर्दी आ गई ना, तो फूड को भी थोड़ा कैप पहना दिया. तो कैप पहना दिया हमने, ये फूड भी थोड़ा कैप वैप पहन के बड़ा ब्यूटीफुल सा लग रहा है. जो फूडी होते हैं ना, दोज हु आर फूडी, जिनको खाना अच्छा लगता है, उनके लिए तो खाना अच्छा है ही, है ना? लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो फूडी नहीं है, वेरी फसी अबाउट फूड, ये नहीं खाना, उसे वो नहीं खाना. तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा खाने को डेकोरेट कर दिया, तो वो सर्दी लगा दी, उसको कैप वैप पहना दिया. And so far as lesson was concerned, हम लोगों ने lesson complete कर लिया है, और कुछ बच्चे अभी भी आ रहे हैं, admit कर लेते हैं जी. तो हम लोगों ने lesson complete कर लिया है, और हम लोगों ने complete कर लिया है. आपका काम अभी बाकी है, आपने question answers अभी तक complete नहीं किया है ना, तो आपका आज का काम है, you have to complete the question answers. अच्छा, मैंने E sections का question answers नहीं भेजे थे आपको, कुछ टेक्निकल इशू से वो जा ही नहीं रहा था. मैं अभी आपको भेजूंगी क्लास के बाद. अगर आपने कर लिया वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, बिकॉज हमने डिस्कशंस तो कर लिए थे. अगर आपने नहीं किया है, जस्ट वेट, आई बी सेंडिंग यू क्वेश्चन आंसर्स, और जिन्होंने कर लिया वो पर मैच कर लेंगे क्या वो क्वेश्चन सही है कि नहीं. बिकॉज बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज करते हैं कि मैम क्या हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. बच्चे मेक द मोस्ट वेलकम. Want you can write the answer in your own language. It will enhance your vocabulary. आपके vocab, आपका जो शब्द कोश है ना, हिंदी में कहते हैं हमारे शब्द कोश, उसको बढ़ाएगा. तो आप जरूर लिख सकते हैं. हमारा मोटिव तो क्वेश्चन के आंसर को जानना है ना? अगर आप चाहें, you can write the answer by yourself also. The motive is to know whether you know the answers or not. तो आप कर सकते हैं. अगर आपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट लिख लिया है, वेरी गुड, क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू. अगर आपने नहीं लिखा है तो आप, मैं भेज रही हूँ, आप जस्ट उसको, ठीक है? जिन लोगों ने लिख लिया उनके लिए तो बिग थम्स अप. ओके, सो आज हम लोग क्लास में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. उसके पहले एक बार रिकैप करें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है.
क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड बड़ा छोटा सा है। हाँ, तो हम लोगों ने पढ़ा है, वी हैव गॉट 3 टाइप्स ऑफ फूड, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। हम अपने साथ 3 बच्चों को वापस ले रहे हैं, है ना, क्लास में, ताकि मैं उनके साथ भी। ओके, 1 मिनट। शिवेश कौशल, म्यूट योरसेल्फ बेटा। शिवेश अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। नहीं हो रहा है, अरे क्यों? ट्राई इट अगेन, गिव अ ट्राई, फिर से करो। हो गया, चलो वेरी गुड। ओके, पेश हो गया। आज प्रियांशु रंजन भी हमारे साथ रहेगा। अनम्यूट, प्रियांशु अनम्यूट करो। आप अनम्यूटेड हो गए हैं, आवाज बोलिए कुछ। नेक्स्ट, साक्षी फोरे, अनम्यूट योरसेल्फ। साक्षी, I cannot see you. Yes, ma'am. I cannot see you. Your screen is black. Your screen is black. कोई नहीं क्या? शिवेश, वीडियो ऑफ नहीं करेंगे, कीप योर वीडियो ऑन, कीप योर वीडियो ऑन। से मर रहा है तुम तो। प्रियेश रंजन, कोई प्रॉब्लम हो रही है? प्रियेश, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अनम्यूट। शिवेश बोला नहीं है। शिवेश, नो टॉकिंग प्लीज, नो टॉकिंग। साक्षी 4C, यस मैम। Sakshi 4C and Sakshi 4A, your video is not there. अपने वीडियो ऑन करें। Okay, so हम लोगों ने पढ़ा है, we have studied food and we have studied 3 types of food. एक बार रिवाइज करते हैं, because इसके बाद आपके क्लासेस नेक्स्ट वीक में होंगे, तो हम नया चैप्टर तो बाद में ही शुरू करेंगे। ओके, बाकी जो अभी हमारे साथ अनम्यूटेड है, आवाज कम करेंगे। ओके, अभी भी कुछ बच्चे हैं हमारे वेटिंग एरिया में, उनको मैं एडमिट करती हूँ। ओके, शिवेश, पहला टाइप ऑफ फूड बता दो। एनर्जी गिविंग फूड। बी लाउडर, थोड़ा सा जोर से। एनर्जी गिविंग फूड बोल रहे हो और एकदम। एनर्जी गिविंग फूड। हाँ जी, नहीं ना, आप कैसे बोल रहे थे बताओ। एनर्जी गिविंग फूड, अरे एनर्जी नहीं है, एनर्जी के साथ एनर्जी गिविंग फूड। यस, एनर्जी गिविंग फूड। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? साक्षी 4C बताएगी। साक्षी 4C, बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड। थोड़ा सा लाउड बोलो बेटा। बॉडी बिल्डिंग फूड, यस मैम बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड। एंड साक्षी 4A क्या होगा लास्ट? साक्षी 4A, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड। Yes, very good. So we all know that we have got 3 categories of food. Again, some of the students are waiting. So we have got 3 kinds of food: energy giving food, body building food, and protective food. And these 3 types of food have got 4, they have basic nutrients. And what are nutrients? That also you know. Nutrients are the substance present in food that provide energy, that help us to grow, keep us strong, and that keep us what? Healthy, disease free. है ना? Okay, तो एनर्जी गिविंग के 2 न्यूट्रिएंट्स हैं, वन इज फैट, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। बॉडी बिल्डिंग का बोलिए शिवेश, व्हाट इज द न्यूट्रिएंट फॉर बॉडी बिल्डिंग?
Protein. Protein, yes. And protective food, Sakshi. Vitamins and minerals. Vitamins and minerals, yes. Okay, so this was all about nutrients. Okay. हम लोगों ने ये पढ़ा है, एक छोटा सा जस्ट बना रहे हैं हम आपको इस लेसन का। इसके बाद ये भी देखा है कि along with these nutrients ये हमारे बेसिक हमारे खाने में मिलने चाहिए, ये हमारे खाने के बैलेंस डाइट में से एक है। तो किस इसमें से कोई भी एक मिस कर जाते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी मे गेट डिजीज। ओके, चल अब हम आते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, सिंस आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, नोबडी, सबके हाथ दूर होने चाहिए अपने मोबाइल से। अपने हाथ दिखा दो। गुड, वेरी गुड, सारे बच्चों ने दिखा दिया। और ये तो साक्षी तो ऑलवेज हैप्पी, एकदम बाल में कुछ कुछ लगा के शी इज ऑलवेज हैप्पी। क्या लगाया है? सर के ऊपर 2 सिंग बना लिया उसने। चलिए हम लोग शेयर करते हैं स्क्रीन। ओके, जो अनम्यूटेड है वो बात नहीं करेंगे, है ना? आज मैं आपको एनोटेशन डिसेबल भी कर दूंगा, तो नाम आ जाएगा। ओके, हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। वी हैव डन दिस। न्यूट्रिएंट्स, व्हाई आर दे नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, दिस एंड ऑल हम लोग कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दिस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हैज अ वैल्यू इन स्टोरी के पीछे कोई वैल्यू है, कोई मोरल है, तो यू मस्ट नो। अच्छा, मीनवाइल साक्षी 4A 4C दोनों और शिवेश, क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर है? Yes, ma'am. Your voice is clear. Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Your voice is clear. Very good, thank you. Okay, so And my voice is clear. thank you, thank you, thank you, thank you तीनों बच्चों, thank you. Okay, now वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हमारे इस बुक में ही आपको मिलेगा, हमारे डीएवी के बुक में आपको मिलेगी, बिकॉज वी बिलीव इन वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ लाइफ। हम वैल्यू ऑफ लाइफ पे बिलीव करते हैं। तो हर एक स्टोरी, हर एक टॉपिक जो हम पढ़ते हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, मैथ्स में हो, साइंस में हो, व्हाटएवर टॉपिक वी स्टडी, इसके पीछे क्या वैल्यूज, एक स्टोरी के माध्यम से हम लोग आपसे पूछते हैं ना, व्हाट इज द वैल्यू बेस्ड ऑन इट। ओके, चलो। राधिका एंड रमन वेंट टू अ पार्टी विद देयर फ्रेंड्स, पेरेंट्स। राधिका और रमन पार्टी में जाते हैं। द मेन्यू इंक्लूडेड 3 वेजिटेबल डिशेस, दाल, कर्ड, स्प्राउट्स, सैलेड एंड चपातीस। जहाँ गए हैं पार्टी में, अभी तो पार्टी का सीजन नहीं है हमारे पास, क्योंकि वी आर इन कोरोना, वी आर नॉट गोइंग टू एनी पार्टीज। क्या हम जा रहे हैं? नो, वी आर नॉट गोइंग एट ऑल। हम अपने घर ही में पार्टीज कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। ओके, तो राधिका और रमन, जिस वक्त की बात हो रही है उस वक्त कोरोना नहीं था, तो किसी पार्टी में जाते हैं और उसके मेन्यू में क्या क्या है? मेन्यू में है 3 वेजिटेबल डिशेस, सब्जियां हैं, दाल है, कर्ड है, स्प्राउट्स। अच्छा, हाथ उठाएंगे वो बच्चे those who love sprouts. You know what is sprout? जो बच्चे अनम्यूटेड है वो बता दे, do you know what is sprout? जो अनम्यूटेड है वो बताओ, जो बच्चे अनम्यूटेड हैं वो बताइए। साक्षी, शिवेश, you know what is sprout? अरे नहीं पता, चलो। उत्सव राठौर ने हाथ उठाए हैं, उत्सव बोलो, you know what is sprout? Am I audible? Yes, ma'am. You are audible. Okay, so बताइए स्प्राउट्स किसे कहते हैं? कोई जानता है? Those anybody who knows this? क्या मतलब? Nobody take. हाँ, again 5 participants has raised their hands. Let's see who are they. Anitya Pradeshi, बोल बेटा। Anitya? Ankur. अंकुर। अंकुर। Yes, yes, yes. It's called अंकुर। अंकुर मतलब आप देखेंगे कुछ बच्चे, कुछ सबके घर में होती होगी, आपको अभी मैं बोलूंगी तो हाँ मैम मेरी मामा बनाती है। आद्य वर्मा को पता है व्हाट इज स्प्राउट? No, ma'am. अभी मैं बोलूंगी तो बोलूंगी मम्मी बनाती है मैम। आपने देखा होगा, आप
आपके पेरेंट्स, माँ जो है जनरली, वो चना को या मूंग को वो दे देती है Yes, ma'am. एक दिन सारा दिन, और नेक्स्ट डे अगर उसको पानी से निकाल के छोड़ देते हैं तो उसमें पतले पतले रूट्स निकल आते हैं. You know that? Have you seen that? Yes, ma'am. Have you seen that? Yes, ma'am. Yes. देखो क्या होता है, Yes, ma'am. किसी भी चना या मूंग को अगर Yes, मान लीजिए ma'am. चना सूखी चना है Yes, ना, ma'am. उसको ऐसे माँ उसको अगर पानी में डाल देती है तो देखोगे उसमें लंबे रूट्स निकल आते हैं. Yes, ma'am. I can always eat. Oh, you eat it, but you don't know what is sprout. पता ही नहीं है sprout क्या है. इनको कहते Ma'am, हैं I हम लोग. also eat them. Yes, it's a very healthy thing. This is called sprout. इसको हम sprout कहते हैं. अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, they are very Yes, healthy. ma'am. Okay, so तो राधिका, और मैं वापस जाऊँ स्क्रीन में, राधिका और रमन शायद दो बच्चियां हैं ना, हाँ, ये लोग किसी पार्टी में गए हैं और वहां जाके मेन्यू देखा है. म्यूट कर लेंगे अपने आप को सारे बच्चे. ओके, यहाँ पे उनको मेन्यू मिला है जहाँ पे 3 वेजिटेबल्स है. म्यूट कर लें जो लोग अनम्यूटेड है, साक्षी को छोड़ के और शिवेश को छोड़ के. ओके, तो उसके मेन्यू में है वेजिटेबल डिशेस, दाल, कर्ड, स्प्राउट, सैलड्स एंड चपातीज. लेकिन रमन को क्या था, कौन बोल रहा है, somebody is talking, Yes, somebody is talking बेटा. Aradhana. साक्षी 4 से आपकी तरफ से आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से आवाज. No, ma'am. Ma'am, मेरी तरफ से नहीं आ रही है. मैम मेरी तरफ से नहीं आ रही है. ओके, जस्ट अ मिनट. Yes. ओके, शिवेश आप अनम्यूटेड हैं, मैंने आपको सिर्फ अनम्यूटेड छोड़ा है. यू आर ओनली अनम्यूटेड. ओके ओके, तो राधिका और रमन ये दोनों पार्टी गए. हम पार्टीज जाते हैं तो कितनी तरह के वी एक्सपेक्ट, रोटी होगी, मतलब अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलेगी. तो राधिका और रमन भी पार्टी में गए तो उसे उसके जो मेन्यूज थे उसमें थे वेजिटेबल डिशेस, दाल, कर्ड, स्प्राउट, सैलड एंड चपातीज. लेकिन रमन वाज एक्सपेक्टिंग, रमन को था कि भाई पार्टी है तो फिर नूडल्स होगा, बर्गर होगा, पिज्जा होगा. हाय, क्या रोटी सब्जी आ गई. ही फेल्ट वेरी बैड, उसे बहुत बुरा लगा और उसने कुछ नहीं खाया. हम पार्टीज में सोचते हैं ना जाते के साथ कि शायद नूडल्स होगा, गुपचुप होगा. क्यों साक्षी, करते हो? पार्टी का मतलब ही होता है कि नहीं थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना. तो ही फेल्ट वेरी बैड, उसे बहुत बुरा लगा कि भाई कैसे पार्टी में आए कि यहाँ भी रोटी सब्जी खाने को मिल रहा है, दाल और स्प्राउट्स. ही फेल्ट बैड एंड डिडंट ईट एनीथिंग. और वो इतना बुरा उसे लगा वो चपाती और कर्ड देके कि उसने कुछ नहीं खाया, है ना, उसने कुछ नहीं खाया. लेकिन अगर आपने किसी को बुलाया है अपने घर में और अगर आपके घर में कोई आए और वापस कुछ ना खाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? विल यू फील गुड? शिवेश, आपका बर्थडे है, आपने मुझे खाने पे बुलाया, आपने रोटी रखी, सब्जी रखी, दाल रखा, स्प्राउट्स रखा, और मैं सोची गई थी कि आज तो शिवेश मुझे नूडल्स खिलाएगा और मुझे बर्गर खिलाएगा और पिज्जा खिलाएगा, और मैं वहां नहीं दिखी और मैंने कुछ नहीं खाया. ठीक है, और मैं वापस आ जाऊंगी. विल यू फील गुड अबाउट इट? No, ma'am. नो मैम, एब्सोल्युटली. जो होस्ट आपको बुलाया है अपने घर में, आप उनके घर में कुछ नहीं खाओगे तो होस्ट को क्या लगेगा? बुरा लगेगा. तो वही चीज इसको हुआ, जिसने बुलाया था उन्हें बहुत बुरा लगा तो उसने तुरंत तुरंत ऐसे भी अरेंज किया. अब मैंने कहा कि शिवेश मैं यहाँ तुम्हारे यहाँ तो नहीं खाऊंगा, तुमने तो नूडल्स ही नहीं बनाया, तुमने तो बर्गर ही नहीं दिया. अब तुम्हारी मम्मी को सुन के बुरा लगेगा कि मैम आई और मम्मी कुछ नहीं खिलाया. तो क्या की मैम, मम्मी ने तुरंत तुरंत से पिज्जा विज्जा ऑर्डर कर दिया. ठीक है ना. तो सिमिलरली यहाँ भी उसको बहुत बुरा लगा, ही फेल्ट वेरी बैड. तो उसने अरेंज किया नूडल्स और पिज्जा रमन के लिए. लेकिन ऐसा तो रमन को तो अच्छा लगा, चलो भाई यहाँ पे सबको रोटी सब्जी खा रहे हैं, मेरे लिए तो पिज्जा आ गया. लेकिन रमन के पेरेंट्स को बहुत एम्बैरेस्ड हुआ, बहुत ग्लानि हुई, बहुत गंदा लगा. अगर आप किसी के घर जाओ और आपको कुछ 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 ऑफर करे एंड यू से कि नो, आई विल नॉट ईट एनीथिंग,
मैं कुछ नहीं खाने वाला हूँ। और तो अगर आपसे पूछे वो कि भाई बेटा क्या खाओगे, तो मुझे तो फलाना चीज खाना है, मुझे तो नूडल्स खाना है, मुझे मैगी खाना है, और वो झटपट अगर मैगी बना के आपको दे दे, तो आपकी मम्मी को अच्छा लगेगा? नो मैम। नहीं, उन्हें बोले, वो फिर आपको घर आके डांटेगी, बोली तुमने गलत बिहेव किया, तो दिया गया था तुम्हें वो खाना चाहिए था। सिमिलरली रमन के पेरेंट्स को भी बहुत एम्बैरेसिंग लगा, मुझे बहुत लगा बहुत गंदा, कैसा बिहेव किया इसने, इसने बात नहीं मानी इसकी, क्यों, उसे बहुत एम्बैरेसमेंट। ऑन द अदर हैंड राधिका वाज हैप्पी टू सी द फूड सर्व देयर, लेकिन राधिका को बहुत अच्छा लगा था फूड, उसे बहुत मस्त लग गया था, क्योंकि वो लव, शी वाज इन लव ऑफ ऑल दिस फूड, वो हेल्दी फूड खाती थी, इसलिए जो फूड वहां सर्व किया गया उसने बहुत टेस्ट से खाया और लाइक किया। ओके, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो राधिका को जो भी दिया गया था वो अच्छा से खा रही है, और रमन के दिमाग में पिज्जा बर्गर ये सब चल रहा है, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन इज, was Raman right in doing not eating in the party? आराध्य वर्मा, जवाब दो, was Raman right? क्या रमन सही था पार्टी में नहीं खा के? नो मैम। No, he was not right not eating anything in the party. Yes, सही बात है, ये तो गलत काम किया है। दूसरा क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन इज फॉर, question is for मानस झा, अनम्यूट योरसेल्फ। बाकी बच्चे म्यूट कर लेंगे, बाकी बच्चे म्यूट करेंगे सिवाय शिवेश के। मानस झा, why did Raman's parents feel bad at his behavior? मानस, क्वेश्चन है, why did Raman's parents feel bad at his behavior? रमन के पेरेंट्स को क्यों बुरा लगा उसके बिहेवियर से? अनम्यूट करो बेटा, नहीं तो अनम्यूट कैसे बोलोगे, कैसे अनम्यूट करो। यस, why did Raman's parents feel bad at his behavior? मानस झा, those who can answer this question, those who want to answer this question, raise your hand. नव्या राजपूत, बोलो नव्या, अनम्यूट करो। नव्या, अनम्यूट yourself. Yes. Why did Raman's parents feel bad at his behavior? मैम मैंने वो प्लॉट का मीनिंग के लिए हाथ उठाया था। इसका जवाब दो बेटा, कोशिश तो करो, गिव अ ट्राई टू इट, एक बार ट्राई करो। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या आपकी मम्मी को अच्छा लगेगा? साक्षी कुमारी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। बोलो, why did Raman's Yes, parents feel bad about it? Raman's parents feel bad at his behavior because he cannot eat these things that he make. No, not like that. Raman's parents feel bad at his behavior because it is our moral duty not to disobey or क्या कहें, हमें, हमारा ये moral duty है, we feel bad. Raman's parents feel bad at his behavior because we should not behave like this at somebody's house. Somebody is hosting a party, किसी ने host किया है party, तो हमें उसको डिसऑनर नहीं करना चाहिए। उसने आपके सामने कुछ खाना सर्व किया है, by doing this, by saying that I'll not have anything because you have not made pizza, you have not made noodles, we are dishonoring him. तो हमें किसी के घर जाके उसको डिसऑनर नहीं करना चाहिए। ओके, म्यूट करेंगे सारे बच्चे, शिवेश को छोड़ के सारे बच्चे म्यूट कर लेंगे। ओके, आयुष कुमार, ओके, संजना कुमारी, 4A, which is better food, dal salad or pizza burger? And pizza burger, यस मैम। which is better food? यस मैम। अच्छा, आपको खाने में एक कटोरी मैम दाल, दाल एंड सलाद। अच्छा याद रहेगा ना ये, अगर मैं घर आऊं और मैं तुम्हें दाल, एक कटोरी दाल दूं और एक हाथ में मैगी रहेगा, तो दाल पी लोगी ना? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। यस बच्चे, बिकॉज दीज आर द फास्ट फूड, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, वेरी गुड। संजना, म्यूट योरसेल्फ। अक्षर, ओके मैम।
अक्षत, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बेटा, क्वेश्चन है व्हाट वुड यू डू इफ यू वेर एट रमन्स प्लेस? तुम अगर रमन की जगह पे होते तो तुम क्या करते? I can do when I will do be away and eat chapati and dal. क्या Not बात we है, क्या not बात with है, वेरी dishonored. गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बच्चे। यस, आई वुड नॉट हैव डिसोबेड और डिसऑनर्ड द होस्ट। सही बात है, अगर मैं रमन की जगह पे होता तो मैं उन्हें डिसऑनर नहीं करता या नहीं करती, रादर मैं उनकी बात सुनता, है ना, और उन्होंने जो भी मुझे दिया होता खाने के लिए मैं उसको खाता। सही, एकदम सही बात, वेरी गुड। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। आपको इसको भी कभी भी कर लेना है और ईट समथिंग टू डू ये भी डिस्कस करते हैं, तो वापस हम लोग क्लास में आएंगे, है ना। देखो, आपको दिया हुआ है, यू हैव बीन गिवन 8 पिक्चर्स, कैन यू सी दोस पिक्चर्स? आपको पेज नंबर 59 में पिक्चर्स दिख रहे हैं? Yes, ma'am. वेरी गुड। नाउ आपको इसमें लिखना है इनमें कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मिल्क में, श्वेता कुमारी बताइए, मिल्क में कौन सा विटामिन होता है? बोलिए। कौन बोलेगा? Ma'am. बोलो। Yes, ma'am. Ma'am, vitamin A. ओके, तो आपका काम ये रहेगा, यू हैव टू लुक एट द पिक्चर्स। ये मैं नहीं बता, डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, यू डू इट बाय योरसेल्फ। मैं इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि कुछ काम खुद के लिए भी रखना चाहिए, मैं ये काम आपके लिए छोड़ी हूँ, ठीक है। ये आप खुद से करेंगे पिक्चर्स, और पिक्चर्स को ड्रॉ करेंगे व्हाइट पेज पे। नाउ सी, ये नीचे वाला हम करेंगे, म्यूट करेंगे सारे बच्चे, श्वेता अपने आप को म्यूट करो। नीचे वाला ये है एक यंग चाइल्ड का बैलेंस डाइट चार्ट। You have to prepare a balanced diet chart for a young child. Okay, write down the nutrients present in each food item suggested by you. ठीक है, करना क्या है, ब्रेकफास्ट में हमें क्या क्या खाना है, ठीक है। ब्रेकफास्ट में आपको क्या, आपने क्या क्या खाया, या यंग क्या खाना चाहिए एक यंग चाइल्ड को, आपको लिखना है। और आपको लिखना है इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। जैसे कि मान लेते हैं कि ब्रेकफास्ट में हम मिल्क लेते हैं और साथ में ले रहे हैं ब्रेड, मिल्क ब्रेड बॉइल्ड एग। तो मिल्क में क्या है, वी हैव गॉट कैल्शियम, वी हैव गॉट, इसका मतलब वी हैव गॉट मिनरल्स, वी हैव गॉट विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, ये तीनों है मिल्क में, यानी विटामिन और मिनरल है, और क्या है, प्रोटीन है, ठीक है ना, मिल्क में। तो हमने क्या ले लिया, चलिए मैं आपको स्क्रीन पे वापस आती हूँ तो फिर बताऊँ। ये जो चार्ट है, इट्स अ वेरी गुड चार्ट, बहुत मस्त चार्ट है। करना क्या है आपको, मैं बताती हूँ आपको। आपको ये फूड चार्ट बनाना है, ठीक है, अपना ही चार्ट है, अपना ही सोचो, है ना। करेंगे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग लंच एंड डिनर, सारे बच्चे देखेंगे, एंड डिनर, लंच और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हो उसका। मॉर्निंग हमने ब्रेकफास्ट में मान लेते हैं कि आज के ब्रेकफास्ट की बात करें, ठीक है। तो शिवेश, आज अपने ब्रेकफास्ट में क्या किया, जल्दी बताओ। कोई सोच रहा है? मैम, हाँ बोलो बोलो। मैम ब्रेड, ब्रेड, ओके, और क्या लिया? मिल्क, मिल्क, ओके। अच्छा, ये हमारी क्लास का बूढ़ा बच्चा है, बूढ़ा है, याद ही नहीं रहता, मेमोरी लॉस है शिवेश। अच्छा, ब्रेड टोस्ट एंड मिल्क लिया, ठीक है ना, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये बैलेंस डाइट लिया है, देखा जाए। ब्रेड में क्या है बेटा, बताओ। अक्षय मैम बता। प्रोटीन, हाँ जी,
जोर से। protein, ब्रेड में प्रोटीन नहीं है। साक्षी बोलेगी हाँ उछल रही है, बोलो साक्षी, बोलो ब्रेड में क्या है? मैम कार्बोहाइड्रेट। ब्रेड बनता है आटे से बच्चे, आटा है गेहूं, है ना, एंड इट इज कार्बोहाइड्रेट। आपने लंच ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट लिया और लिया मिल्क। मिल्क में क्या है बताइए, मिल्क में क्या है? Vitamin. vitamins and minerals. हाँ, मिल्क में है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, आर कैल्शियम, यानी आपके विटामिन एंड मिनरल्स हैं। अलॉन्ग विद दैट मिल्क इज अ प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कार्बोहाइड्रेट भी मिल्क ले लिया आपने, आपने प्रोटीन लिया, आपने विटामिन एंड मिनरल्स भी ले लिए, यानी ये अपने आप में बैलेंस डाइट है। आपने सही बैलेंस डाइट ली। चलिए अब लेते हैं हम लोग आस्था कुमारी, कहाँ गई आस्था? अनम्यूट करो, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। थोड़ा जोर से बोलोगी। यस मैम। चलो कल लंच में क्या लिया था? कल लंच में क्या लिया था? शिवेश को तो मॉर्निंग का याद नहीं है, तो लंच तुम्हें याद कहाँ से होगा, है ना शिवेश? मैम राइस। राइस। बच्चे हमारे बड़े स्लो हैं, एकदम स्लो स्लो बोल रहे हैं। रुको मैं बताता हूँ। Ma'am, I can eat chapati and vegetable. चलो हम लोग सब लंच में जनरली हर के घर में होता है चावल, दाल, भुजिया, सब्जी, सैलड और दही वगैरह होता है ना। तो चावल एंड देन पल्सेस एंड देन vegetables and then we have got salad and of course we have got water, है ना? यस मैम। राइस लिया तो कार्बोहाइड्रेट ले लिया, लिया ना? राइस लिया तो कार्बोहाइड्रेट ले लिया, पल्सेस लिए प्रोटीन चला गया, वेजिटेबल्स लिया ऑब्वियसली विटामिन एंड मिनरल्स गए, सैलड गया, सैलड इज अ मस्ट। सारे बच्चे जाने आपके लंच में डिनर में सैलड जरूरी है। व्हाट इज इट? सैलड क्या है? सुयश सैलड क्या है बेटा? सूर्यांश व्हाट इज सैलड? सूर्यांश सैलड क्या है? जाओ क्लास के बाहर निकल। शांभवी व्हाट इज सैलड? सारे बच्चे बोल रहे हैं, मैंने म्यूटेड किया हुआ है। अच्छा बोलो व्हाट इज सैलड? ओए क्या हो गया? अमृत ओझा, मैम सैलेड इज मेड बाय वेजिटेबल्स। ओझा कैन यू हियर मी? Ma'am, salad balance food. Okay, salad contains nothing. It contains fiber. It is roughage. आपको बताया गया है कि salad roughage होता है. It contains no nutrient at all, but it contains fiber, which helps you to get rid of undigested food. मैंने आपको बताया ना कि salad में हो, salad is something which contains fiber, which makes you get rid of undigested food and also helps you to avoid overeating, है ना? तो ये भी आपके बैलेंस डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड लास्ट इज वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, because water helps in digestion, and water not only helps in digestion, it also helps in absorption of nutrients in the blood. Sayan Abdullah, are you there? Yes, ma'am. वेरी गुड। सैन मुझे बताएं कि अगर हमने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ये लिया, लंच में ये लिया,
लंच भी हमारा बैलेंस डाइट है, डिनर हम क्या लेंगे कि हमारा बैलेंस डाइट हो जाए? बताओ. You have to prepare this Ma'am, chart. chapati. आपको ये चार्ट बनाना है और ना सिर्फ बनाना है, आपको लिखना है कि आपने जो खाना खाया या जो वो, ये तो यंग चिल्ड्रन के लिए बताया गया है, इट्स फॉर यंग चाइल्ड. तो आपको ये बताना है कि ये जो आपने बनाया है डाइट चार्ट, ये जो आपने डाइट चार्ट बनाया है, ये जो डाइट चार्ट आप बनाने वाले हैं या बना रहे हैं, इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है? अनित्या, हमारा डिनर कैसा होना चाहिए ताकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो? Ma'am, शांभवी, chapati. शांभवी आप, हाँ अनित्या बताया चपाती. चपाती में क्या होगा शांभवी? कौन सा न्यूट्रिएंट? मैम कार्बोहाइड्रेट. वेरी गुड. यानी आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया. अब दूसरा बताओ और क्या होगा? Ma'am, vegetables. वेजिटेबल्स. शांभवी बोलिए, कौन सा न्यूट्रिएंट लिया? आदित्य कुमार मिश्रा, आप न्यूट्रिएंट हैं, जल्दी बोलिए. आप अगर वेजिटेबल्स लेते हैं तो कौन सा न्यूट्रिएंट है उसमें? वेरी बैड आदित्य, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप म्यूट कर ले रहे हैं अपने आप. अमृत ओझा, बताइए, अगर हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो क्या है? मैम वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो कीप्स अस हेल्दी. अरे बच्चा मेरा, हम जब वेजिटेबल्स ले रहे हैं ना, हम विटामिन्स ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं. आपको बताया है, सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में होते हैं. यस मैम. आयुष कुमार 4E, आयुष कुमार 4E. तो अभी अनिद्या ने आज के डिनर में प्लान किया है चपाती लेगी, तो वो उसके पास कार्बोहाइड्रेट हो गए. प्लान किया है कि आज सब्जियां खूब खाना है, तो उसके विटामिन्स एंड मिनरल्स हो गए. मुझे ये बताइए कौन सा न्यूट्रिएंट उसने मिस कर लिया? Ma'am, sal. ना 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 ना, आपने आपका तो खाना ही है, आपका डिनर है. बताएगा आयुष, पूरी बताएगा उसने अपने डिनर में, अनिद्या ने अपने डिनर में क्या मिस किया?